थोड़ा सा मैं उसको टेक्निकली इस तरह से प्रेजेंट करना चाहता हूँ. एक्चुअली व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव इज वी आर ट्राइंग टू destroy all the patterns. Okay, you know what is a pattern. By pattern I mean, if I give you one card, two card, second card I mean, then third card, then fourth card, but if I ask you what will be the fifth card, then you should not be able to guess. Okay, so if you are able to guess something like that, it means your combinations are weak. For example, just relate this example with the OTP system. For example, if you know this kind of system exists, then let's say there is a 6-digit of OTP, and if I have given you 5 digits somehow, and you will be able to guess the 6th digit. If that is true, then nobody will rely on the security of the OTP system, and the system will be broken down easily. So we don't want such systems. We don't want a system which can predict the values. So what we say that every card, every next card in the when you are playing card, that should be independent of the presence of the previous card. I mean, if you get an X card, and then next card could be, I won't say Y. Why? Because when I say Y, it is definitely something in the increasing order. So I mean to say, when the first card is X, the another card could be anything like M. There should not be any relationship between the occurrence of second card. So that is what is the kind of system we are talking of. We call it independent system, or we also call them these are the random numbers basically which we are talking about. I mean, by random numbers I mean to say the random occurrence of numbers should be purely random. Okay, so like the OTP, if you get an OTP, you won't be able to guess what is going to be the next OTP. Okay, so that's very essential thing in the world of security when we are talking like this. So that's why that's a basic, just an idea I just want to share you, because you guys are definitely must be playing cards to utilize this time at your home. So why we are studying this subject, that I'm sure that you must be hearing such newses these days, but these days in fact it's a COVID time, that's why mostly newspapers are full of COVID. But generally you can see there are newses every time in the in the papers or in the TV. In fact, in Bhilwara also there are many times people complain that they've been attacked by cyber criminals, and with those attacks they have lost many of their amount. They have shared their credentials which were earlier used by them, or there are certain fake websites. For example, let's say I'm the user of hdfcbank.net. For example, instead of typing HDFC Bank, let's say by mistake I have typed HDFCBA instead of N. Let's say I typed M. So can you imagine, there could be a website, okay, of that HDFCBA MK by that name, and that will look exactly like the website of HDFC Bank. And what by generally user used to see the graphics and all, and I believe this is the actually this is the website of HDFC Bank. And what will I do? I will enter my ID and password, and then boom, all my ID and password that will be collected by that particular fake website that exactly look like the website of HDFC Bank, but the name was actually different. That was a typographical error by me. I have entered a wrong URL, but ultimately that was the kind of, you can say, loss of my ID and password. And once it is shared, that could lead to many such issues later on. So this is just one example. So with the help of cyber crimes, we are losing lots of our revenue, and reputation loss is also there. You can see if anybody can, because being a student, the financial loss is not so much of your concern. But for example, if anybody has hacked your Facebook ID password, then again you will be in great trouble. They can also they can blackmail you, like I have your ID and password of Facebook, so I can leak your photographs, I can post something bad about you, about anything. So that will again cause much stress to you and your life. So again, that is also a very, very big issue. So that is true. Again, loss of image of the organization. For example, if any such organization, for example, there is news many times that these many ID and IDs of Twitters have been they have been released on darknet. Do you know darknet? If you don't, just explore the term darknet
Okay, so this is one of the interesting term, dark net. You just explore the term whenever you get some time. Just explore the word dark net. So that is again not a good case. Many times there is a news that Facebook users ID and details, they have been leaked on XYZ website by some group of hackers. So that is what that hampers the image of that organization, like Facebook, Twitter, whatever they are, and that makes people lose their trust from those platforms. So that is also not good, and that may also impact in the loss of share price of these companies and their reputations. So many reasons are there that the cyber systems should be very strong. In fact, while designing good websites or while designing good e-commerce solution platforms, the companies and those who are designing those softwares, they used to hire some sort of professional hackers. We call them ethical hackers. They used to hire those ethical hackers, or in fact the companies, those who are dealing with this area of providing or finding out the loopholes in the system, they used to hire them and they ask them, just explore and find out if there is any loophole, or is there any loophole, or is there any backdoor entry point remains in our system that may be explored by the hackers. So this is a very well practice these days, and they used to hire. And so that this practice or this demand has given this security as a career option. Now it has emerged as a career option. Otherwise, some years back, it can't be thought as a career option. Now people are having options. They can also, after doing your BTech or parallelly, there are many certification courses available in the direction of cybersecurity. You can just start exploring those courses, or you can be a part of the after acquiring these courses. You can try your career in those companies, those who are for example, these antivirus companies are there, or there are companies those who used to manufacture or they used to manufacture firewalls. Oh, okay, so these companies are pretty much in demand these days. So you can also explore your career in these good companies. So this could also be an area of your career option. So that's why, with all these good points, I just want you guys to encourage about this subject. Although it's already a very interesting subject, and you can study a lot about this subject. There are lots of movies. In fact, there have been so many movies released in this topic also, and so many Hollywood movies, especially those who are highlighting the requirement of information security. And you will wonder that this term information security, or in India, it is around 10 to 15 years only that we have introduced this subject in our syllabus, while in the United States or in the Germany or these countries, it's been more than 50 years that they are practicing this subject. In fact, in World War II, they have used the methods of securing their transmitting signals. Whatever signals they used to transfer from one warship to another warship, they used to encrypt them. This was the technique developed by Germans. They have developed a machine called Enigma. So that was a machine, Enigma machine, that used to encrypt the message so that nobody can read the message in between. So I mean to say, these techniques are very, it's not like this is a very new subject. Everybody want to secure their communication. You will wonder, there was a king called Julius Caesar. I suppose you have heard this name, Julius Caesar. So what he used to do, do you guys remember? Have you seen some old movies or something like Mahabharata, Ramayana? I'm sure you must have watched those Mahabharata and Ramayana. So do you remember कि कोमल शर्मा का स्वागत करते हैं हम सभी लेट आने पे. So can anybody tell me how a message was conveyed in Mahabharat or in Ramayana? एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज कैसे जाता था, कैसे भेजते थे? Can anybody share the idea? हैं लोग अभी यहाँ पे? मनोज है? Yes sir. मनोज तो है, बिल्कुल. मनोज, कुछ बताओगे कैसे मैसेज भेजा करते थे पुराने सर वो घुड़सवार होते थे उस टाइम पे, तो सर घोड़े के थ्रू मैसेज भेजते थे. नहीं, घुड़सवार तो जैसे एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम हो गया, ठीक है. वो जो मैसेज होता था, वो मैसेज तो हाथ में लेके जाता था, ठीक है. घुड़सवार इज लाइक इंटरनेट. ओके, घुड़सवार हो गया इंटरनेट हमारा.
तो और वो Yes, जो sir. मैसेज होता था, जैसे आपको याद है कि वो एक नींबू की शाही से भी कुछ उसमें लिख के बेचते थे, Yes, ऐसा sir. पता है क्या किसी को? किसी ने देखा क्या नींबू की शाही No, वाला sir. मैसेज? उसको कैसे यस पढ़ते सर, थे? यस हाँ, सर, वो विचल ऐसे बताएगा। कुछ वो लोग तो जैसे प्याज से लिख करके फिर उसको एक हीट के ऊपर रखते थे उस पेपर को, जैसे ही वो यस, वेरी गर्म हो गुड। जाता पेपर तो फिर दिखता था। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड अविचल, वेरी गुड। इसने बहुत अच्छे से वो देखे हैं सारे पुराने सीरियल्स। तो उसमें क्या होता था, एक सीक्रेट मेथड हुआ करता था, एक इंक होता था अलग, स्पेशल इंक, वो नींबू और प्याज ऐसा उसका पानी से बनाते थे वो लोग, और उसे वो लिख देते थे, और जिसको उसको रीड करना है उसको उस मैसेज को हीट के पास, मोमबत्ती, कैंडल या कोई भी हीट के पास वो जैसे लेके जाते थे, तो उसके जो वर्ड्स थे, फिगर्स थे, वो दिखने लग जाते थे। तो कहने का मतलब, आई मीन टू से, कि रास्ते में अगर कोई उस घुड़सवार को रोक भी ले, मान लीजिए जैसे इंटरनेट, उस घुड़सवार को मैं इंटरनेट से कंपेयर कर रहा हूँ, मान लीजिए बीच में किसी ने इंटरनेट का को ट्रैप कर लिया और सिग्नल को, डेटा को ले लिया, रिसीव कर लिया, दैट्स नॉट ए बिग डील दिस डेज, ठीक है, उस तरह से वहां भी हो सकता था। तो लेकिन वो मैसेज उसके हाथ में लग भी जाएगा, दुश्मन राजा के हाथ में है, तो लेकिन वो उसको पढ़ नहीं सकता, क्योंकि उसको पता नहीं कि ये किस टेक्निक से उसने लिखा है। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल हो गया। मान लीजिए उसको टेक्निक पता है वो गर्म करने वाली, तो वो उसको गर्म करके पढ़ सकता है, मान लीजिए। लेकिन एक दूसरा टेक्निक जूलियस सीजर ने यूज किया था। उन्होंने क्या किया था जूलियस सीजर ने, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स वो ये लोग यूज करते थे, जूलियस सीजर ने हर एक अल्फाबेट को अपने से तीसरे कैरेक्टर से रिप्लेस किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए को उसने रिप्लेस किया था डी से, ठीक है, बी को रिप्लेस किया ई से। तो उन्होंने एक टेक्निक बनाई, +3 अप्रोच, कि हर एक कैरेक्टर को हम +3 करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट में, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो भी मैसेज आप भेजने वाले थे, हेलो, हाउ आर यू, व्हाटएवर इट इज, उसको +3 कर दो, सिंपल सा। तो वो एक तरह का अनरीडेबल मैसेज हो जाता है लोगों के लिए, जिसको नहीं पता कि ये इस तरह की अप्रोच भी हो सकती है, तो उसके लिए वो एक अनरीडेबल मैसेज हो गया। तो एक टेक्निक जस्ट आई वांट टू शेयर, कि इतना जस्ट ए हिस्टोरिकल टेक्निक, बताइए कि इतना पुराने टेक्निक, इतने पुराने जमाने में, आज से 15वीं या 16वीं शताब्दी कुछ रही होगी, दैट विल बी द टाइम, तब जाके भी लोगों ने इस तरह के मेथड्स यूज किए। एक और इनोवेटिव मेथड आई वुड लाइक टू शेयर, आप लोग भी हंसोगे उसमें कि ये भी कोई मेथड है सर का बड़ा, लेकिन है। जब आप विकिपीडिया पे जाओगे और इस तरह के पुराने मेथड्स पढ़ोगे, तो आप लोग भी हंसोगे। एक राजा क्या करते थे, वो अपना जो भी मैसेंजर होता था, जो घोड़े पे जाने वाला है, पहले उसके सारे सर के बाल साफ करते थे, और उसके सर के बाल, उसके सर के टकली पे वो मैसेज लिखते थे, और जब उसके बाल पूरे उग जाते थे तो उसको वो वहां से रवाना करते थे, ताकि रास्ते में कोई पकड़ भी ले तो कभी ये नहीं सोच सके कि ये जो मैसेज है, सीक्रेट मैसेज, ये इसके सर के बाल पे लिखा हुआ है। तो ये सब टेक्निक्स हिस्ट्री में कवर होती है, विकिपीडिया पे आप लोग जाएंगे, और मैं चाहता हूँ आप लोग जाएं और देखें विकिपीडिया पे कि इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स लोगों ने यूज की थी। तो जिसे, और आज की जो हमारे मॉडर्न इंक्रिप्शन टेक्निक्स है, वो काफी हद तक वो जो बेस हमें मिला है वो वहीं से मिला है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी का बेस जो है, आप देखेंगे तो जो क्लासिकल मेथड्स हैं, इनको बोलते हैं ना क्लासिकल मेथड्स, वो क्लासिकल मेथड से मिलता है। तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके हैं, आप लोग जाके देखिएगा जरूर। और जूलियस सीजर ने तो एक तरीका जैसे लगा दिया था +3 करने का, तो +3 करने का तो तरीका जैसे एक बार समझ में नहीं आएगा लोगों को, 2 बार समझ में नहीं आएगा, कुछ दिनों में तो हो सकता है लोगों को समझ में वो तरीका आ जाए। तो +3 के तरीके को मॉडर्न मॉडर्न क्रिप्टोग्राफर्स ने क्या किया, उन्होंने +3 को +x कर दिया। x यानी उन्होंने बोला कि ये कुछ भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं 3 हो, ये 0 से लेके 25 तक कुछ भी हो सकता है। तो एक नया तरीका उन्होंने निकाला। तो इससे क्या हुआ, कम से कम रीडर जो बीच में पढ़ने वाला था उसका काम तो बढ़ गया, उसको सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ गए, +3 भी करना है, ट्राई +4 भी करना है, +5 भी करना है, तो उनको सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ गए। फिर कुछ लोगों ने इसको और कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से बनाया, उन्होंने बोला कि ए में तो, जैसा फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका मैसेज है ABC, उन्होंने बोला कि ए जो कैरेक्टर है उसमें तो हम +3 करेंगे, डी में हम +20 करेंगे, सी में हम प्लस लेट्स से 10 करेंगे, कुछ भी, एनीथिंग, एनी रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 25, क्योंकि ये कैरेक्टर्स इंग्लिश के जो होते हैं अल्फाबेट्स उसके अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब, उन्होंने उसको थोड़ा और टफ करने की कोशिश की। तो जो इनिशियल मेथड था उसमें लोगों ने धीरे धीरे, और इसको हम बोलते हैं, आप लोग अगर सुन रहे हैं इस बात को तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरेचर रिव्यू, यानी कि पास्ट की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको पहले स्टडी किया जाता है, और उस स्टडी में से उसकी गैप्स ढूंढे जाते हैं कि इसमें क्या कमी रह गई। उस कमी को पूरा करने के लिए हम एक नई अप्रोच अपनी सोचते हैं, और उसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है, कि ये नई अप्रोच है। केवल ऐसा बताने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू प्रूव दैट दिस अप्रोच इज राइट, यू नीड टू प्रूव इट ईदर थ्योरेटिकली
या तो उसको मैथमेटिकली प्रूव करना रहेगा या फिर उसका कोई मॉडल बना के उसको प्रूव करना पड़ता है। और आपने अगर उसको प्रूव कर दिया कि मेरी टेक्निक सही है तो वो एक नई टेक्निक आपके नाम से बन जाती है, यानी कि आपने एक नई टेक्निक बना दी लिटरेचर के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट। अभी जिस तरह से साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहे हैं वो सब इसी तरह से होते हैं। जैसे आपको कोई नया इन्वेंशन करना है या कोई नई डिस्कवरी करनी है तो आपको सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीन लग रही है उसमें जैसे किसी ने बोला कि इस वैक्सीन में कुछ मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें जो साइंटिस्ट है वो लोग उसको स्टडी कर रहे हैं और कुछ लोग उसकी कमियों को पूरा करके उसी में मॉडिफिकेशन करके नया सिस्टम नया वैक्सीन लॉन्च करेंगे अपना। तो ये एक नया इन्वेंशन इस तरह से, नई डिस्कवरी इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, लिटरेचर रिव्यू। ये तरीका है जिससे हमारा जो साइंस है वो आगे बढ़ता है। तो सबसे जरूरी क्या है, हिस्टोरिकल चीज़ों को देखना कि पहले क्या क्या हो गया। कई बार हमें यही पता नहीं होता है कि पहले क्या क्या हो चुका है। ठीक है, तो कुछ साइबर क्राइम्स पे जो अभी तक मैंने बात करी है, बहुत ज़्यादा अभी टेक्निकली आगे नहीं जाते हुए, अभी जस्ट वांट, आप में से कोई अगर कोई साइबर क्राइम किसी के साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है किसी तरह का अपने परिवार में या विद एनी ऑफ योर फैमिली फ्रेंड्स, इफ यू वुड लाइक टू शेयर any of the incidents, just don't make it again one way. If anybody want to share something regarding this कि ऐसा कुछ हुआ है या बाकी लोगों को भी कोई नई बात बताना चाहते हैं, अगर अवेलेबल है यहाँ पे। सर फिशिंग अटेम्प्ट होते हैं पर हम उनको होने नहीं देते। ओके, दैट्स ग्रेट। 10 लाख रुपए जीते आपने, आपको एक मारुति मिलती है। हाँ, दैट्स ग्रेट। और ये जो फिशिंग अटैक के बारे में कोई बताएगा आप में से, मनोज के अलावा और अविचल के अलावा, व्हाट इज फिशिंग अटैक? नमन, गुंजन, कोई है अवेलेबल? यस सर। हाँ नमन, आप बताना, आपको पता है क्या फिशिंग अटैक क्या होता है? यस सर, फिशिंग अटैक्स तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति का जब सीजन होता है तो उसके अंदर बहुत सारी बार मैसेज आता रहता है। ओके, थोड़ा सा और कोई इसमें आप में बाकी लोग भी हैं, मुझे दिख रहे Yes, हैं। sir. हेमू चौधरी है अभी? शुभम जैन? यस सर। हाँ, आपको आइडिया है हेमू क्या होता है, व्हाट इज फिशिंग, कैन यू एक्सप्लेन? हेलो। Okay. Anybody would like to explain phishing attack in simple words, very simple words? इन लोगों ने बताया, मगर थोड़ा सा टेक्निकली गहराइयों में चले गए फिशिंग की, थोड़ा सा बेसिकली कि सबको समझ में आ जाए व्हाट इज फिशिंग अटैक। सर लाइक ईमेल जो अपने इनक्रिप्ट हो जाते हैं, मींस ईमेल्स अपने जो हैक हो जाते हैं, लाइक फेक वेबसाइट्स। आप जाते कैसे हो फेक वेबसाइट पे, आप पहुंचे कैसे फेक वेबसाइट पे? सर वो कोई लिंक मैनिपुलेट, जैसे कोई जो अपना लिंक है वो कोई इसको मैनिपुलेट कर देता है उस वजह से। तो in very simple terms, phishing is something like when it's like a manual fishing process। जब कोई फिशिंग करने जाता है to catch a fish, आप लोग क्या करते हैं, फिश को कंफ्यूज करने के लिए, फिश को पकड़ने के लिए उस पे एक कुछ भी, उसको जो फिश को पसंद है उस तरह का आटा या कुछ भी चारा लगाया जाता है और फिश को ट्रैप किया जाता है। ठीक है, फिश ट्रैप हो जाती है। और जो फिशिंग अटैक होता है उसमें फिश कौन होते हैं, जैसे हम लोग फिश बन जाते हैं उस केस में। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे कोई चारा डाल के हमें अट्रैक्ट करता है, और उसी तरह से क्या होता है आपके, हम लोग कहते हैं ना कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि पासवर्ड तो सिक्योर रखना चाहिए, यूजर आईडी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपका जो ईमेल आईडी है या आपका जो भी यूजर आईडी है किसी भी तरह का, चाहे वो बैंक का हो चाहे कहीं कहीं का भी हो, हम लोग सोचते हैं यूजर आईडी तो ठीक है ओपन हो सकता है, पासवर्ड प्रोटेक्शन जरूरी है, पासवर्ड सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है, यूजर आईडी को भी आपको संभाल के रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप उसको ब्रॉडकास्ट कर दें कहीं भी और हर जगह डाल दें, क्योंकि क्या होता है आपका यूजर आईडी अगर पब्लिक डोमेन में है तो आपको इस तरह के फिशिंग ईमेल्स आते हैं। जैसे फिशिंग ईमेल्स, एक बार आपका आईडी उनको पता चल गया तो इस तरह के फेक ईमेल वो भेज सकते हैं और आपके मेल बॉक्स में आते रहेंगे। किस तरह के, कौन बनेगा करोड़पति के अगले सीजन के लिए अप्लाई करिए, आप क्लिक करोगे वो आपका केवाईसी मांगेगा, हो सकता है आपका बैंक डिटेल मांगेगा, काफी कुछ डिटेल एक बार में मांग लेगा, हो सकता है सारी डिटेल नहीं मांगे एक बार में, बाकी कुछ डिटेल आपको फोन किया जाएगा, हाँ कि सर आपका एसबीआई में खाता है, आपका कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है, आपका नया कार्ड हम भेज रहे हैं, ये चिप वाला कार्ड आपको भेज रहे हैं,
तो आप जल्दी से, हम आपको एक ओटीपी भेज रहे हैं, आप ये बता दीजिए और हम लोग ऐसी चीजें बता देते हैं, शेयर कर देते हैं इस तरह की। क्योंकि आपको पता है ये सारे डेटा एनालिसिस के काम है। एसबीआई दुनिया, हमारा इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, और आप मान के चलिए ज्यादातर लोगों के अकाउंट जब सबसे बड़ा बैंक है तो एसबीआई में होने हैं। तो एक जस्ट एक प्रोबेबिलिटी का गेम वो लोग खेलते हैं कि जैसे 10 लोगों को कॉल किया तो उसमें से 6 लोगों के एसबीआई में अकाउंट होते ही हैं, तो आम आदमी को यही पता चलता है कि हाँ मेरा तो एसबीआई में अकाउंट है, और आपका अकाउंट नंबर और वो सब मान लीजिए उनको पहले ही मिल गया आपका फिशिंग ईमेल के जरिए, क्योंकि आजकल ओटीपी का सिस्टम बड़ा तगड़ा है, बिना ओटीपी के काम होता नहीं है। लेकिन जनरली इस तरह के जो फेक कॉलर्स होते हैं वो बाकी डिटेल पहले इकट्ठी कर लेते हैं, और ओटीपी आपको ऑन द स्पॉट इस तरह से बात करके कन्विंस करके आपसे ओटीपी ले लिया जाता है, और बस ओटीपी गया और उसके बाद तो बस बैठे रहिए। क्योंकि यहाँ अभी तक इंडिया में प्रोसेस, हमारा साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट करने का प्रोसेस इतना तगड़ा नहीं है बिल्कुल भी। अभी हमें यही नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहाँ कंप्लेन लॉन्च करना है, ये सब चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अभी तक भी। इनफैक्ट मुझे तो अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि सैटरडे संडे को तो जो साइबर क्राइम वाला जो स्टेशन है वो बंद रहता है। किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था, वो लोग वहाँ गए तो पता चला सैटरडे संडे तो बंद है, मंडे को आना। तो ऐसे में जो फाइनेंशियल लॉस हो गया, या किसी भी तरह का आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल अगर पे कुछ गलत लिख दिया किसी ने, तो 2-3 दिन में तो बहुत सारे वैसे ही इश्यूज क्रिएट हो ही जाते हैं। तो अभी इसलिए दैट द बेटर थिंग इज कि अवेयर रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये सब्जेक्ट आजकल ऐसा है कि ऐसा नहीं कि अभी हम लोग को आईटी स्टूडेंट होकर अवेयर रहना है, ये अवेयरनेस तो मैं मानता हूँ आजकल सब जगह होनी चाहिए। इनफैक्ट स्कूल्स में अभी कुछ टाइम पहले मैंने वीटी स्कूल के बच्चों को एक सेशन इस तरह पे इस पे दिया था कि कैसे आप लोग अपना ध्यान रखें। मतलब छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी क्वेरी की, उनको बहुत कुछ आइडिया था। तो छोटे छोटे बच्चे भी इन सब चीज़ों के बारे में आजकल सीख रहे हैं। तो ये दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को इसके बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो थोड़ा सा अभी टेक्निकली चीज़ों पे अगले सेशन में जाएं, मैं सोच रहा हूँ। आप लोग है ना, एक मैंने वीडियो शेयर किया था आप लोगों को, प्लीज़ एक बार उस वीडियो को आप लोग गो थ्रू करिए, और थोड़ा सा और कोई क्वेरी किसी तरह की है तो वी कैन डिस्कस हियर राइट नाउ, और टेक्निकल पॉइंट पे हम लोग अगले सेशन पे जाएंगे। विल दैट बी गुड? यस सर। कॉल क्वेरी किसी तरह की आज के डिस्कशन को लेके? नो सर। ओके ओके एवरीबॉडी, आज का पहला सेशन ही था ये, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग थोड़ा की टर्म्स और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, मीनवाइल एवरीबॉडी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। और कोई थैंक यू क्वेरी सर। इस तरह की तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, ताकि मैं अगले सेशन में उसको कवर कर लूंगा। ओके सर। अभी ओके एवरीबॉडी, बाय।